Hello and welcome to everyone present here. Students, you already know that we have been discussing the chapter The Rise of Nationalism in Europe, and we were discussing very important and crucial topic, the making of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण. Under this topic, first of all, we had discussed about the meaning of liberal nationalism. Then we had discussed about the conservatives, and then we had discussed about the revolutionaries. Now it is time to discuss about the age of revolutionaries. क्रांतिकारियों का युग या क्रांतियों का युग. The time period between 1830 and 1848 is known as the age of revolutionaries. यूरोप में 1830 से लेकर 1848 के बीच के समय को क्रांतियों का दौर या क्रांतियों का युग कहते हैं. और these revolutions were brought by the revolutionaries. You already know that after the establishment of the conservative governments, after defeat of the Napoleon Bonaparte in 1815 and the Vienna Conference held under the leadership of Chancellor of Austria, Metternich, the conservative governments were restored in the areas which were captured by Napoleon Bonaparte, and these governments were very autocratic in nature, and they used to curb them totally, and their all activities, whosoever were going to criticize the conservative governments, whosoever were going to talk about the liberty and equality of people, they were going to be curbed by these conservative governments. So after restoration of conservative governments in Europe, it was very much difficult for the liberal nationalists to work openly. So they went underground and many secret societies were formed. And in backdrop of the conservative governments, the liberal nationalists and the nationalist people started to make a revolution in Europe against this monarchical form of government. And the first revolution which took place was in France in 1830. So now let us discuss about this age of revolutionaries. As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came up to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe. तो जैसे जैसे कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो थी, रूढ़िवादी सरकारें थी, अपनी शक्तियां बढ़ाने लगी, तो फिर उदारवादी और राष्ट्रवादी जो तत्व थे, लोग थे, उन्होंने यूरोप में क्रांति लाना शुरू कर दिया. These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks and members of the commercial middle classes. और ये जो रिवॉल्यूशन का दौर आया, और इसमें जो रिवॉल्यूशन लाने में जिस समूह का हाथ था, वो था शिक्षित मध्यम वर्ग का संपन्न तबका, जिसमें कि प्रोफेसर, स्कूल टीचर और कमर्शियल क्लास के लोग जैसे कि बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे. देन फर्स्ट ऑफ ऑल the revolution took place in France. The first revolution in France is also known as the July Revolution. तो रिवोल्यूशनरियों के द्वारा जो पहली क्रांति की गई वो फ्रांस में की गई थी, जिसे जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से जानता है. 1830 में हुआ था. द बर्बन किंग वेयर ओवरथ्रोन बाय द लिबरल रेवोल्यूशनरीज. तो उदारवादी क्रांतिकारियों द्वारा वहाँ के जो बर्बन डायनेस्टी के जो राजा थे उसको वहाँ से हटा दिया गया, और वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना हुई, और उसका हेड लुई फिलिप बने. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज इंस्टॉल्ड विद द लुई फिलिप एट हिज हेड. तो बर्बन डायनेस्टी का जो राजा था, किंग था, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट किंग था, ऑटोक्रेट था. व्हाट्सएवर डिसीजन ही यूज्ड टू टेक, देयर वाज नो एनीबॉडी टू कंट्रोल ओवर द पावर ही एक्सरसाइजेस. तो जब भी राजा वो डिसीजन ले लेता था तो उसके ऊपर कोई भी ऐसी बॉडी नहीं थी जो उसके डिसीजन के ऊपर कोई भी प्रश्न उठाए या उसके डिसीजन को कंट्रोल करे. लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाती है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अब राजा को कार्य करना पड़ता है. ही कैन नॉट फ्रीली टेक एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन. वो अपने मन से हर तरह का डिसीजन नहीं ले सकता है. तो बर्बन डायनेस्टी के स्थान पर अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई. दिस स्पार्क रिवॉल्यूशंस इन ब्रसेल्स, सेपरेटिंग इट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स. इसके साथ साथ ब्रसेल्स में भी एक क्रांति हुई जिसके चलते ब्रसेल्स जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया. Thus, Metternich remarked, when France sneezes, the rest of Europe catches cold. इन सारी घटनाओं को देखते हुए
ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यू मेटरनिक ने यह टिप्पणी की कि जब भी फ्रांस छिकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। मतलब कोई भी क्रांति अगर फ्रांस से शुरू होती है तो फिर वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल जाती है। द अनदर मेजर इंसिडेंट विच टुक प्लेस दिस एज ऑफ रिवॉल्यूशन इज द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? नाउ लेट अस डिस्कस इट। ग्रीक का स्वतंत्रता संघर्ष क्या है? ग्रीक हैड बीन द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। ग्रीक जो है यो यूरोप का बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। इट इज़ द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। इसे यूरोप की सभ्यता का पालना भी माना जाता है। मतलब कि यूरोप की जो सभ्यता और संस्कृति है उसकी सबसे पहले शुरुआत ग्रीक में ही हुई थी और उसके बाद पूरे यूरोप में ये फैला। मतलब इट वॉज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ये यूरोपीय सिविलाइजेशन का पालना में इसे माना जाता है। पूरे यूरोप की सभ्यता संस्कृति की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। तो ये जो था ये ऑटोमन एम्पायर का 15th सेंचुरी से ही मतलब उसके अंडर में था। ऑटोमन एम्पायर का हेड तुर्की का सुल्तान होता था जो एक मुस्लिम साम्राज्य था और द हेड ऑफ द तुर्की मतलब तुर्की का जो सुल्तान होता था ही यूज्ड टू बी आल्सो द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। और तुर्की का जो सुल्तान था वो पूरे मुस्लिम समुदाय का भी धार्मिक हेड होता था। तो धार्मिक हेड होते के साथ ही ऑटोमन एम्पायर का भी वो हेड था और उसके अंतर्गत ये ईसाई देश जो था ग्रीक गुलाम था। द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस विच बिगेन इन 1821। तो जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स 1815 के बाद रिस्टोर हुई थी यूरोप में, उसके अगेंस्ट में जब रिवॉल्यूशन होने लगे तो उसकी लहर ग्रीक में भी पहुंची और ग्रीक में भी स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हो गया और ये 1821 में शुरू हुआ। दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियन। तो ग्रीक में जब स्वतंत्रता आंदोलन 1821 में शुरू हुआ तो उसके सपोर्ट में बहुत सारे वेस्टर्न यूरोप देश से भी सपोर्ट मिला और वैसे ग्रीक जो उनको देश निकालने की सजा हो गई थी उनका भी सहयोग मिला। इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑल्सो वेंट टू फाइट इन वार। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में इंग्लैंड के बहुत प्रमुख कवि लॉर्ड बायरन भी उसमें लड़ाई करने गए थे बट इन 1824 ड्यू टू फीवर ही गॉट डाइड। लेकिन 1824 में फीवर के चल के उनकी मृत्यु हो गई थी। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और अंत में जाकर 1832 का ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कस्तुनतुनिया की संधि के सहारे ग्रीक को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया। So we see that two major incidents took place. First was the July Revolution of France in 1830, in which Bourbon dynasty was replaced by the constitutional monarchy, Louis Philippe being its head. And another incident was the start of the beginning of the Greek War of Independence in 1821. And lastly, finally, Greek was recognized as the independent country by the Treaty of Constantinople in 1832. After that, we will study about a major ideology that is known as Romanticism. So, what was Romanticism and how it was going to help in the spread of nationalism? We will discuss in next topic. तो रोमांटिज्म क्या था और उसके सहारे किस तरह से राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ, हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। टिल देन, ओके।